Namaste. Dear student, up till we have discussed vector in 10 parts. All the types, theoretical part, theorems, three-dimensional coordinate system, all this information we have covered in first 10 parts. Now, from today's period, we want to discuss examples related to part 1 to part 10, out of which the exercise that is 5.1 is given in the book. I am using examples related to the exercise 5.1, out of which the first example I want to discuss with you is very basic, very simple, but uses the information which we have already discussed in the parts. Now, example is saying if capital A 3, 2, minus 1, that means three coordinates of A are given with us. Capital B is having the coordinates 2, 3, 4 and capital C is with 0, 5 and 14 as a coordinate, are 3 points in the space. Then find first sub question, that is find AB bar, find magnitude of AB bar, find unit vector along AB bar, find BA bar, find BC bar. Show that the points capital A, B and C are collinear, and the last, that is seventh sub question, is find twice of AB bar plus thrice of BC bar. All these questions are using these 3 points capital ABC. So we will start one by one. We will get answers of these questions one by one. Before starting the answers of this AB bar, I want to use position vector of this A, B and C denoted by their small letter, small a bar, small b bar, small c bar be the position vector of these 3 given points. So let small a bar, small b bar, small c bar be the position vector, of the points capital A, capital B, capital C respectively. Then we can say that the position vector which we are seeing as a bar, this position vector is the position vector of the point A, and it can be evaluated by using its coordinate, that is attaching I, J and K with these 3 numbers. So A bar can be written as thrice of I cap plus twice of J cap, and this minus 1 with K cap, this is minus K cap. The second point B is having the position vector as a B bar, so it can be written as twice of I cap plus thrice of J cap plus 4 times of K cap, and this capital C uses the coordinate, that is value of small c bar, as 0 I cap plus 5 J cap plus 14 K cap. Once we know the position vector of all these 3 points, we can get the answer of first sub question, that is AB bar. So what is AB bar? By definition, or the A and B are 2 points and their vector joining A and B can be evaluated by using the definition of this AB bar as a B bar minus A bar. So we can take subtraction. So subtract A bar, subtract this A bar from B bar. So we can get the value of this vector AB bar. So what is B bar? B bar is having the value as a twice of I cap plus 3J cap plus 4K cap minus this A is to be subtracted. So this A is having the value as a 3I cap plus 2J cap minus K cap. So subtraction of these vectors is nothing but the subtraction according to their components, or subtraction takes place in their components. So I is having the first component as a 2, subtracting, so minus in between them, and the 3. Taking J common from these 2 numbers, the number with first J is 3, minus in between them, and the number with second J is 2. So taking J common, we will get this bracket
number with k, that is component of this k cap is 4 from first vector, minus is there and this is already minus, so minus into minus, this will be plus, nothing means 1 with that k cap can be taken common. So this can be written like this. आप अगर ए बी बार फाइंड करना चाहते हैं तो बी के पहले से ए का पहला सब्सट्रैक्ट करो और उसको आई कैप से मल्टीप्लाई करो, बी के दूसरे से ए का दूसरा सब्सट्रैक्ट करो और उसको जे कैप से मल्टीप्लाई करो, बी के तीसरे से आप सब्सट्रैक्ट करो ए का तीसरा और उसको के कैप से मल्टीप्लाई करो। तो इस तरह से आपके पास ये वेक्टर निकालने के लिए आइडिया है अगर उनके कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है। तो आपको ए बी बार फाइनली क्या मिलता है, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करके माइनस आई कैप ही मिलेगा, या दोनों का सब्सट्रैक्शन करके 1 मिलता है, तो 1 into j cap is j cap only and this addition is 5 k cap. Okay, so a b bar we have got as minus I cap plus j cap plus 5 k cap. So first answer is completed. Let us target second, that is find mod of a b bar. So what is mod of a b bar? This is the magnitude of vector a b bar. And how to get magnitude? Magnitude can be evaluated by using the root symbol in which this structure is fixed. क्या करना है, तो ये i, j और k के साथ में जो नंबर है उनके स्क्वायर की एडिशन का रूट निकालना है। तो i के साथ में, i कैप के साथ में कौन सा नंबर है, -1, j कैप के साथ कौन सा नंबर है, नथिंग मीन्स 1 होता है, और k कैप के साथ में कौन सा नंबर है, 5। तो आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते समय i, j, k के जो कंपोनेंट्स है उनके साथ जो कोएफिशिएंट है उन कोएफिशिएंट को आप उनका सेपरेटली स्क्वायर करो, उनकी एडिशन करो, उनका रूट यूज करो। तो इसका आंसर क्या होता है, तो ये 1 का भी स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का 1 और 5 का 25, तो ये 25 + 1 26 एंड 27। तो इस तरह से आपको ये रूट के अंदर 27 ये मैग्नीट्यूड मिलता है इस ए बी बार वेक्टर का। वे ए बी बार वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते समय उसकी वेक्टर आईजेके में अगर अवेलेबल है तो इस तरह से उसका मैग्नीट्यूड अवेलेबल होता है। अब आपका नेक्स्ट टारगेट है कि ए बी कैप निकालना है। तो ए बी कैप क्या है, ए बी कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए बी बार। आपका अगर ये बी बार है, ये वेक्टर ए बी बार है, तो इस ए बी बार से जाने वाला यूनिट वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, ये मैग्नीट्यूड कितना लेता है, रूट के अंदर 27, बराबर है। तो ये पूरा वेक्टर है रूट 27 वाले मैग्नीट्यूड का, और आपको ऐसा वेक्टर तैयार करना है जिसके मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये फॉर्मूला आपको ऐसा मिलता है, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी बार इज नथिंग बट ए बी बार, उस वेक्टर को ही उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, उस वेक्टर को ही उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो वेक्टर कौन सा है, कौन से डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं, ए बी बार। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर को लिखो पहले, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप, और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है जो आपने ये नंबर 2 में निकाली है जो है रूट 27। तो ये इस तरह से इस डायरेक्शन में जाने वाला वेक्टर, ए बी बार के डायरेक्शन में जाने वाला यूनिट वेक्टर निकालते समय आपके पास फॉर्मूला होता है ए बी कैप इज इक्वल टू ए बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बी बार। तो आपका थर्ड नंबर का सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। 4 की तरफ जाएंगे। 4 की तरफ जाते समय आपको क्या मिलता है, आपका टारगेट है ये बी ए बार फाइंड करना है। अब बी ए बार, ए बी बार तो आपने फाइंड किया है, आपका टारगेट है बी ए बार फाइंड करना है। तो ये सेकंड जो पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर में से पहले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे आपने यहाँ ए बी बार लिखते समय बी को पहले लिया है, बाद में ए को लिया है, तो यहाँ बी ए बार लेते समय सेकंड कौन है, ए, तो उसका पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। आप इनके पोजीशन वेक्टर को यूज करो या फिर इसके डायरेक्ट इस फॉर्मेट में उसको आप यूज करेंगे तो और इजी आपको मिलता है। किसी भी वेक्टर के वैल्यू 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट अवेलेबल है तो इस ब्रैकेट को यूज करो, ब्रैकेट के बाहर आईजे के लिखो, हर ब्रैकेट में माइनस यूज करो। ये फॉर्मूले से सब्सट्रैक्शन लेते हैं यहाँ बीच में, तो ये माइनस रूट से आता है। और आपको सेकंड पॉइंट कौन सा है, यहाँ सेकंड पॉइंट बी है, सॉरी सेकंड पॉइंट ए है, तो ए के कोऑर्डिनेट से बी के कोऑर्डिनेट
पेयर वाइज पहला पहला दूसरा दूसरा सब्सट्रैक्ट करो। तो ये ए के कोऑर्डिनेट से सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं बी के कोऑर्डिनेट को, तो 3 से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2 से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, और इस -1 से सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं 4 को। तो इनका रिजल्टेंट आंसर क्या होता है? तो ये आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये 3 - 2 होगा 1, और ये 1 क्या होगा? यहाँ 2 - 3 का स्ट्रक्चर आता है, 2 - 3 का स्ट्रक्चर आता है -1, एंड बाहर आपके साथ है यहाँ जे कैप, -1 - 4 ये होता है -5 के कैप, और इस तरह से ये बी ए बार वेक्टर है। अब यह ए बी बार है और ये बी ए बार है। आप अगर चेक करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो ये मैग्नीट्यूड उतनी ही मेंटेन करता है। मैं अगर मॉड ऑफ बी ए बार लेता हूँ, तो मॉड ऑफ बी ए बार में भी क्या होगा? ये आई के साथ में नंबर 1, जे के साथ में नंबर -1, और के कैप के साथ में नंबर है -5, उसका भी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या मेंटेन होता है? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और ये -5 का स्क्वायर भी +25 ही मिलता है। तो ये आगे जाके √27 ही मिलेगा। जितनी मैग्नीट्यूड ए बी बार की थी उतनी मैग्नीट्यूड बी ए बार की है। इसका मतलब ए बी बार कहो या फिर बी ए बार कहो, ए बी बार कहो या फिर उसको बी ए बार कहो, वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो उतनी ही होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं, मान लो अगर मैं माइनस यहाँ कॉमन लेता हूँ, सो दिस बी ए बार से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है? ये माइनस लेने से और एक माइनस आई कैप के साथ आता है, ये माइनस लेने से पॉजिटिव जे कैप मिलता है, और ये माइनस लेने से पॉजिटिव 5 कैप मिलता है। तो ये माइनस बाहर, इस ब्रैकेट को अगर आप चेक करते हैं तो ये किसकी वैल्यू है? -i कैप प्लस जे कैप प्लस 5 की कैप। ये तो इसको रिप्लेस करने के लिए तो ये भी बार कह सकते हैं। तो ये बी ए बार और ए बी बार मैग्नीट्यूड तो सेम लेते हैं, लेकिन वो डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए दोनों को इक्वल कहने के लिए बीच में कंपलसरी माइनस यूज करना पड़ता है। भले मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इन वेक्टर को इक्वेट करते समय माइनस यूज करना पड़ता है। तो ये भी बात, इसको आप अपोजिट डायरेक्शन में भी कह सकते हैं कि अगर ए बी बार कहना है तो ये क्या होता है? माइनस ऑफ बी ए बार, और बी ए बार अगर कहना है तो क्या आएगा? माइनस ऑफ ए बी बार आता है। जिस तरह से अगर दो को इंटरचेंज करते हैं, ये दो पॉइंट्स को अगर इंटरचेंज करते हैं वेक्टर फॉर्म करते समय, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम लेते हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट मेंटेन होती है। उस केस में दोनों को इक्वेट करते समय माइनस का यूज करना पड़ता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे, तो 5 कहता है कि बी सी बार फाइंड करो। वंस अगेन आपको आप बी और सी को यूज करना है, आई जे के उसके बाहर यूज करो। सो आई एम यूजिंग 3 ब्रैकेट्स, multiplying them by I cap, J cap, K cap. Each bracket is having minus in between them. तो आप B से C तक वेक्टर फाइंड करते हैं, तो C के कोऑर्डिनेट से B के कोऑर्डिनेट को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो पहले की सब्सट्रैक्शन क्या होगी? C का पहला 0 है, B का पहला 2 है, C का दूसरा 5 है, B का दूसरा 3 है, C का तीसरा 14 है, और B का तीसरा 4 है। तो आपको क्या मिलेगा आंसर? तो आंसर का स्ट्रक्चर है -2i कैप, यहां डिफरेंस भी +2j कैप, और ये दोनों का डिफरेंस +10k कैप। तो ए बी बार आपके पास अवेलेबल है और बी सी बार भी आपके पास अवेलेबल है। तो ये दोनों इस तरह से आपके पास अवेलेबल वेक्टर हुए। आपका नेक्स्ट टारगेट है कि आप निकालना चाहते हैं, ये प्रूव करना चाहते हैं एक वेक्टर कि पॉइंट्स जो आपको अवेलेबल है ए बी एंड सी, ये कोलिनियर है। तो पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है तो आप पहले उस पॉइंट से दो वेक्टर तैयार कर सकते हैं। पॉइंट से 2 वेक्टर तैयार कर सकते हैं। तो पॉइंट आपके पास है 3, तो पहला वेक्टर तैयार कर रहे हैं आप ए से लेकर बी तक, और दूसरा वेक्टर आप तैयार करेंगे बी से लेकर सी तक। ये ऐसा भी हो सकता है, या फिर 3 पॉइंट इस तरह से भी लिए जा सकते हैं, या ए है या बी है और या सी है। एक वेक्टर तैयार करो ए बी, दूसरा वेक्टर तैयार करो बी सी। तो ये कोलिनियर है या नहीं वो चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए आपके पास ये दोनों वेक्टर के आंसर्स अवेलेबल है। एक
फर्स्ट सब क्वेश्चन था और एक फिफ्थ क्वेश्चन था। तो ये फर्स्ट और फिफ्थ से पहले अगर ये सिंगल क्वेश्चन इस तरह से कोलिनियर दिखाने के लिए आपको प्रूव करना है तो आपको 3 पॉइंट से 2 वेक्टर फाइंड करना है। जो आपने कहा है कि एक वेक्टर होगा ए बी बार, दूसरा वेक्टर होगा बी सी बार। एक कॉमन मेंटेन करना है दोनों में कोऑर्डिनेट, दैट इज बी कॉमन लेना है। सो फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते समय, सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व करते समय वी हैव ए बी बार की वैल्यू अगर आप फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू आपको मिलती है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप, और इस बीसी बार की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू मिलती है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 10 के कैप। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर बीसी बार को एक बार चेक करते हैं तो इसमें अगर 2 कॉमन लेते हैं, बीसी बार के वैल्यू से 2 कॉमन लेने के बाद ये मिलता है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप। 2 कॉमन लेने के बाद, 2 कॉमन लेने के बाद ये मिलता है माइनस आई कैप, ये मिलता है जे कैप, और इसका 2 कॉमन लेने से 5 के कैप। अब यहाँ 2 तो एज इट इज रखो, लेकिन ये जो ब्रैकेट आपको मिलता है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप, ये माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप, इस ब्रैकेट को हटाने के लिए आप डायरेक्ट उसकी जगह पे ये भी बार यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या मिला है, आप एक रिलेट यहाँ कर पाए हैं कि एक वेक्टर जो आपका बीसी बार नाम का है ये डबल में है, इसकी मैग्नीट्यूड डबल है किसके कंपैरिजन में, ए बी बार के कंपैरिजन में। तो यहाँ आप ऐसा कह रहे हैं कि एक वेक्टर ए बी बार दूसरे वेक्टर दैट इज बीसी बार के साथ में स्केलर मल्टीपल का रिलेशन यूज कर रहा है। तो यह आप कह सकते हैं कि वेक्टर बीसी बार इज स्केलर मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी बार। बीसी बार ये स्केलर मल्टीपल में आता है ए बी बार के, और ये डेफिनेशन ही आपको सफिशिएंट है कि एक वेक्टर दूसरे के स्केलर मल्टीपल में जब आता है तो दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से ए बी बार एंड बीसी बार आर कोलिनियर। अब ये वेक्टर कोलिनियर है तो आप कह सकते हैं ये सेगमेंट भी कोलिनियर होती है। तो सेगमेंट कौन सी होगी, दैट्स व्हाई सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट बी सी आर कोलिनियर, बट पॉइंट बी इज कॉमन, पॉइंट बी इज कॉमन। अब कोलिनियर के लिए आपके पास दो कंडीशन है कि कोलिनियर में दो वेक्टर पैरेलल रहे तो भी कोलिनियर होते हैं, और पैरेलल रहे तो कोलिनियर होते हैं, और कोइंसिडेंट रहे तो भी कोलिनियर होते हैं। लेकिन ये पैरेलल वाली कंडीशन नहीं, क्योंकि ये बी कॉमन है। तो बी कॉमन देने वाले कोलिनियर वेक्टर एक ही कंडीशन मेंटेन करते हैं कि वो एक ही लाइन के ऊपर है, बी कॉमन है, दो वेक्टर स्केलर मल्टीपल में आते हैं और उनका बी कॉमन है। तो ये ऐसे कैटेगरी के वेक्टर नहीं है ए बी बार और बी सी बार, ये इस कैटेगरी के वेक्टर है जो आपको यह स्केलर मल्टीपल में रिलेट हो रहे हैं। So this AB bar and BC bar are scalar multiple. That's why they are collinear. Their point B is common. That's why we can say directly the point capital A, capital B and C are collinear. These points are collinear. So इस तरह से कोई भी पॉइंट्स 3 दिए जाते हैं तो उससे दो वेक्टर तैयार करो, और वो दो वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में किस तरह से आते हैं वो एक बार यह आपको प्रूव करके देना पड़ेगा। ये 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, अलग अलग कोऑर्डिनेट चेंज करने के बाद 1/2 आ सकता है, -5 आ सकता है। तो एक स्केलर डेफिनेटली वहां एग्जिस्ट होता है, अगर वो शो दैट का एग्जाम्पल है। तो इस कैटेगरी में उनको आप लिख सकते हैं। ये अगर सेगमेंट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। वेक्टर्स अगर कोलिनियर है और उनके बीच में एक पॉइंट कॉमन है, उनके बीच में अगर एक पॉइंट कॉमन है तो कॉमन पॉइंट होने से वो पॉइंट्स तीनों जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स की कैटेगरी में आप डायरेक्टली कह सकते हैं। आपका एक 6th पार्ट है इस क्वेश्चन का कि आप फाइंड करना चाहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ट्वाइस ऑफ ए बी बार एंड थ्राइस ऑफ बी सी बार। अब आपको ये जो पहला वेक्टर है उस
पहले वेक्टर को जिस ए बी बार को आपका मल्टीपल है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मिलता है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप, और 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इस बीसी को, जो बीसी की वैल्यू है वो अगर यूज करते हैं तो ये माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 10k कैप। तो ये हर एक वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, इंटरनल कंपोनेंट वाइज अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस 2i कैप मिलेगा, यहाँ भी प्लस 2j कैप मिलता है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 कैप मिलता है। ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ निगेटिव होने से माइनस 6i कैप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6j कैप, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30k कैप। अब आई के कंपोनेंट का अगर एक साथ लेते हैं तो माइनस 2i कैप माइनस 6j कैप, इनको ऐड ही करना पड़ेगा और इसका आंसर आता है माइनस 8k कैप। नेक्स्ट वाले जे टर्म को कंपेयर करके, जे टर्म को आप ऐड करना चाहते हैं तो ये 2 एंड ये 6, तो ये हो जाता है 8j कैप, और यह 10k कैप और ये 30k कैप, so this will be 40k cap. So this is the value of this vector minus 8i cap plus 8j cap plus 40k cap. So second example, if the vectors a bar is equal to 2i cap minus qj cap plus 3k cap and b bar is equal to 4i cap minus 5j cap plus 6k cap are collinear. These two vectors a bar and b bar are collinear, then find the value of q. This is the question. Now data is saying the vectors are collinear. Vectors are collinear, that means they are scalar multiple of one another. We can say a bar is equal to k times of b bar. So such type of relation can be developed in between two vectors when they are given as a collinear. So we will start from the same information. So since given vectors a bar and b bar are collinear, hence a bar is scalar multiple of b bar. Say that scalar, जैसे यहाँ k कैप ऑलरेडी k लेटर यूज में आया है, इसलिए वो स्केलर को दूसरा नाम यूज करो t को, तो यहाँ आप दोनों को रिलेट करने के लिए एक स्केलर यूज करेंगे t विद दिस b bar, वेयर t इज स्केलर। ये जो आपने t यूज किया है, इस t को आप स्केलर कहेंगे। अब a बार और b बार की जो गिवन वैल्यू है उसको दोनों जगह पे यूज करेंगे, तो a बार की वैल्यू a बार की जगह पे यूज करो 2i कैप माइनस qj कैप plus 3k cap is equal to t times of this b bar, that is 4i cap minus 5j cap plus 6k cap. When we multiply each term, we will get the next step as 4ti cap minus 5tj cap plus 6tk cap. In left hand side we are having one vector, in right hand side we are having another vector. We are saying these two vectors, left hand side vector and right hand side vectors are equal, and definition of equality of vector is that when vectors are equal, then we have a chance to write their components in equal. So we can say that I component from the left hand side can be equated with I component of the right hand side. तो आई के कोएफिशिएंट या फिर कंपोनेंट आप डायरेक्ट इक्वल लिख सकते हैं, जे के कंपोनेंट डायरेक्ट इक्वल लिख सकते हैं, और के कैप के साथ में जो नंबर है वो इक्वल रहते ही है। तो ये बाई इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स के फॉर्म में आप यूज करना चाहते हैं। सो बाई इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स वी गेट, अब पहले को अगर आई कैप की कंपोनेंट अगर इक्वेट करते हैं दोनों साइड के, तो आई कैप के साथ में लेफ्ट साइड में है 2 और आई कैप के साथ में राइट साइड में है 4t, आई को छोड़ के 4t, तो यहां से पहले t की वैल्यू फाइंड करो। सो दिस इंप्लाइज 4t इज इक्वल टू 2,
एंड t इज इक्वल 2/4 दैट इज 1/2। तो एक बार आपके पास t की वैल्यू अवेलेबल अगर होती है तो t का यूज करके आप इस q के तरफ जाना चाहते हैं। जैसे आप पहले कंपोनेंट यूज करके t की वैल्यू फाइंड की, आप वो t की वैल्यू यूज करनी है और दूसरे कंपोनेंट जिसमें आपका अननोन है वो जे कैप कंपोनेंट के साथ है। तो ये लेफ्ट साइड में जे कैप के साथ नंबर है -q कैप, और दोनों को इक्वल लिखना चाहते हैं राइट साइड के जे कैप के साथ के नंबर के साथ। तो जे कैप के साथ राइट साइड में कंपोनेंट है -5t। आप टारगेट करना चाहते हैं q को, लेकिन यहाँ t की वैल्यू आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी जो आपके पास अवेलेबल है, दैट इज 1/2, so that this negative will be positive and q will be equal to just 5/2। अब आपके पास है एग्जांपल नंबर 3, उसमें a बार वैल्यू दी है, b बार की वैल्यू दी है, c बार की भी वैल्यू दी है, तीन वेक्टर है स्मॉल। देन फाइंड द स्केलर्स। आपका टारगेट है स्केलर m एंड स्केलर n फाइंड करना है, जो तीनों को कंबाइन करने के लिए इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन में a बार और b बार के साथ में यूज किए गए हैं। तो c बार को एक्सप्रेस करने के लिए आप a के साथ m यूज करना चाहते हैं और b के साथ n यूज करना चाहते हैं। तो ऐसे कौन से वो दो नंबर है m और n जो आपको फाइंड करने हैं, जो a बार और b बार के साथ मल्टीपल में लेके प्लस करेंगे तो वैल्यू तैयार करेंगे वो c बार की। इसका मतलब आप यहाँ दूसरे लैंग्वेज में अगर थ्योरेटिकल पार्ट से कहना चाहते हैं कि एक वेक्टर रिमेनिंग दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस आपको करना है, वो एक्सप्रेस करने के लिए m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे केसेस में वेक्टर को आप को प्लानर कहेंगे। एक वेक्टर दूसरे दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में जब एक्सप्रेस होता है तो तीन वेक्टर एक ही प्लेन में होते हैं, ये कंडीशन भी आपको मालूम है। तो आपको ये m और n की वैल्यू जो यूनिकली एग्जिस्ट होती है वो m और n आपको फाइंड करना है। तो आपके पास गिवन वेक्टर अवेलेबल है, आप उस कंडीशन को अज्यूम करना चाहते हैं, जो कंडीशन आपके पास अवेलेबल है आप ये तीनों वेक्टर की जो वैल्यू आपको अवेलेबल है उनको उनकी जगह पे यूज करना चाहते हैं। तो सी बार को रिप्लेस करना है तो माइनस दैट इज 3i कैप माइनस k कैप उसके जगह पे यूज करो। m एज इट इज ए बार की वैल्यू क्या है, तो i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। n बार एज इट इज b बार की वैल्यू क्या है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो आपके पास ये m और n ब्रैकेट के बाहर है तो उसको हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो। तो ये एज इट इज m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा m i कैप m j कैप माइनस 2m k कैप। n से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो 2n i कैप माइनस n इंटू j कैप प्लस n इंटू k कैप। राइट साइड में जो आया है टर्म्स है उनको एक साथ निकाल के कॉमन निकालेंगे i कैप उनसे। तो एक i के साथ m है, दूसरे i के साथ है 2n और ब्रैकेट के बाहर आप i कैप ले सकते हैं। इसी तरह से j कैप वाले दो टर्म्स है, एक है m और दूसरे के पास है माइनस n। तो j कैप की टर्म्स आपने कैप j कैप वाली टर्म बाहर ली और उनके कोएफिशिएंट अंदर यूज किए। उसी तरह से k कैप के साथ में पहले नंबर में है -2m और दूसरे के पास है प्लस n, उनका k कैप अगर आप कॉमन लेते हैं। और यहाँ i वाली टर्म है, k वाली टर्म है, j वाली टर्म एब्सेंट है, इसका मतलब उसको आप जीरो कोएफिशिएंट के साथ जीरो कंपोनेंट के साथ लिख सकते हैं। तो 0j कैप माइनस k कैप। अब फिर से लास्ट एग्जांपल जैसा, एक लेफ्ट में वेक्टर है और एक राइट में वेक्टर है, लेफ्ट में ijk और राइट में भी ijk। तो लेफ्ट में एक वेक्टर राइट में एक वेक्टर और दोनों के बीच में इक्वल है। दो वेक्टर इक्वल कब रहते हैं, दो वेक्टर इक्वल होते हैं जब उनका i का कंपोनेंट इक्वल होता है, जब उनके jj के कंपोनेंट इक्वल होते हैं, जब उनके kk के कंपोनेंट इक्वल होते हैं। सो बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर वी कैन राइट बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर वी गेट उनके i के कंपोनेंट को डायरेक्ट आप इक्वल दे सकते हैं। तो यहाँ मैं अगर राइट के कंपोनेंट लिखना चाहता हूँ, पहले i के साथ राइट में क्या है m प्लस 2n है और लेफ्ट में i के साथ में है 3। इफ आई कॉल दिस इक्वेशन एज 1, j के साथ में राइट में है m माइनस n और j के साथ में लेफ्ट में है 0। इफ आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2,
के साथ में राइट साइड में पहले आप अगर लिखना चाहते हैं तो ये है -2m और +n, और लेफ्ट में है के साथ में -1। अब आपको ऐसा यम और एन निकालना है जो ए बार बी बार के साथ एक्सप्रेस करके सी बार मिल सके। तो आपके पास ये 3 इक्वेशन है यम और एन में। एट ए टाइम 3 इक्वेशन आप सॉल्व नहीं करेंगे, कर सकते। तो आपका टारगेट है इसमें से कोई भी 2 इक्वेशन आप ले लो, उनका सॉल्यूशन फाइंड करो। इसका मतलब यम और एन की वैल्यू फाइंड करो, और जो यम और एन आपको मिलेगा वो तीसरे को अगर सेटिस्फाई करता है तो ये तीनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है, या फिर तीनों का कॉमन सॉल्यूशन वो जो यम और एन वैल्यू मेंटेन होता है वो है, ऐसा कह सकते हैं। तीनों को सेटिस्फाई करने वाला आपका यम और एन फाइंड करना है। उसके लिए इसमें से कोई भी 2 इक्वेशन आप सॉल्व करो, यम और एन की वैल्यू फाइंड करो, और वो इसके लेफ्ट साइड में यूज करके -1 मेंटेन होता है या नहीं होता है वो चेक करेंगे। तो आपका टारगेट है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर आप यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 और 2 को अगर सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन 1 क्या कहता है, m + 2n = 3, और इक्वेशन आपका जो सेकंड है वो है m - n = 0। आप अगर यहाँ चेक करते तो ये m है, इसलिए इसको अगर माइनस सेकंड इक्वेशन को अगर सब्सट्रैक्ट कर दे पहले इक्वेशन को तो साइन चेंज होगा। तो ये +m का -m होगा, +n का -n का +n होगा, और यहाँ साइन का कोई इंपॉर्टेंट, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो आपका ये ऊपर का 2n और नीचे का साइन चेंज करने के बाद 1n, तो ये मिलता है 3n = राइट साइड में 3। तो n की वैल्यू आपको मिलती है 3। तो n आपके पास मिलता है 1, n = 1 मिलेगा। तो n अगर 1 है तो इक्वेशन नंबर किसी भी 1 या 2 में आप यूज करके m की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो इक्वेशन अगर 2 यूज करते हैं, इक्वेशन 2 में n = 1 यूज करते हैं, इक्वेशन 2 क्या है, m - n = 0। तो m - n 1 है, इसका मतलब m की वैल्यू आपको मिलती है 1। सो व्हाट वी हैव, आपका टारगेट था m और n की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वेशन 1 और 2 का ही सॉल्व करके। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके आपके पास m और n अवेलेबल हुआ है। ये m और n इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है वो आपको चेक करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 की आप लेफ्ट साइड यूज करना चाहते हैं, तो इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड है -2m + n, और आप टारगेट करते हैं कि m और n जो आपको इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करने के बाद जो मिला है वो यहाँ यूज करना है, और इसके राइट जैसा आंसर आता है या नहीं आता है उस m और n से वो चेक करना है। तो ये -2 एज इट इज, m की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है 1, और ये कैलकुलेशन से मिलता है -2 + 1, इसका मतलब क्या मिलता है, ये -1 ही मिलता है, और आपका इक्वेशन 3 का राइट साइड खुद -1 है, तो ये आपको मिलता है RHS ऑफ 3। सो आपने लेफ्ट साइड से शुरू किया था इक्वेशन 3 के, और उसमें m और n की वैल्यू पुट करने के बाद आपको मिलता है -1 जो 3 की राइट साइड। इसका मतलब these values also satisfy equation 3, hence m = 1 and n = 1. These are the values which are to be written with a bar and b bar, which gives us the value as like that of the c bar.